Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Yasir Yamin and I'll be taking you through in today's session which is on SBR Strategic Business Reporting Examination. So if you're attempting your paper in March or June 2023, you must have thought about it that what is going to come as current issues in your SBR exam. It is one area of your examination which is not clearly defined in your examination syllabus. So people often wonder what is actually going to be tested in your exam. Now, in today's session, which is going to be a lengthier session, however, I am going to come up with my expectations of what can be tested as current issues for your March or June 2023 examination. Now, you see, as current issues are basically a make or break of your passing scenario. If you get those current issues right, you can, easily go beyond the par, which is a 50 mark area. And if you don't do it, if you haven't got good grip on current issues, then it can be the either way. I've seen many people who fail on 49, and they often say here or there, if we had got two or three or 5 or 6 or 7 odd marks in our minds regarding something which is very easy, we could have easily nailed it down. So I would certainly recommend you that you watch this video completely, but also go through my earlier videos on current issues, especially when I talk about accounting for digital assets, where we talk about cryptocurrencies, NFTs, etc. And also the earlier current issues videos as well. After watching this video, go through them as well and make sure that you subscribe to my channel so that it helps you in the longer run. Now, for March and June 2023, I have sorted down at least 5 areas for which to me are pretty much relevant to you. In today's session, I'm going to use both languages. I'm going to create a mix of English and Urdu Hindi. Largely, since my audience focuses, my audience has a background of Urdu and Hindi, I'm going to go towards that when we go to the when we go to the topics in detail. However, if any one of you wants, I can make another video. If there is enough demand for it, I'll make another video which is purely in English language so that I can cater a larger audience. Just keep me posted about it. तो जो 5 एरियाज मैंने सॉर्ट डाउन किए हैं आपके इस आने वाली अटेम्प्ट के लिए, वो कुछ यूं हैं। सबसे पहले आज के सेशन के अंदर हम लोग बात करेंगे मटीरियलिटी के ऊपर। और मटीरियलिटी एक ऐसा एरिया है जो मैं समझता हूं कि अभी भी उसके अंदर पोटेंशियल है कि वो आपके आने वाली अटेम्प्ट्स के अंदर टेस्ट हो सके। टेस्ट होगा, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा डिफरेंट मैनर के अंदर टेस्ट होगा, जिसके लिए आज हम तैयारी करने वाले हैं, और वो भी एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ। फिर दूसरा एरिया जो कि जिसको मैं टच बेस करूंगा वो है क्लाइमेट रिलेटेड फैक्टर्स। यू सी, आजकल के ज़माने के अंदर वेयर वी सी फ्लडिंग्स, वेयर वी सी अर्थक्वेक्स, वेयर वी सी फाइनेंशियल डैमेजेस फॉर मेनी ऑफ द कंपनीज, ये क्लाइमेट रिलेटेड फीचर एक ऐसा फीचर है, या क्लाइमेट रिलेटेड इफेक्ट्स बिजनेसेस के ऊपर एक ऐसा इफेक्ट है विच इज़ अ वेरी हॉट टॉपिक नाउअडेज। सो आई सर्टेनली फील कि क्लाइमेट रिलेटेड टॉपिक ज़रूर आपके आने वाली अटेम्प्ट के अंदर टेस्ट हो सकता है, और मैं इसका लिंक बनाऊंगा आपके मटीरियलिटी के टॉपिक के साथ। तो आप यकीन जानिए कि ये जो 5 टॉपिक्स मैंने आपके सामने लिस्ट डाउन किए हैं, ये एक्चुअली इन ऑर्डर ऑफ इट्स प्रायोरिटी है। हम पहले मटीरियलिटी का कॉन्टेक्स्ट समझेंगे, फिर उस मटीरियलिटी के कॉन्टेक्स्ट को मैं लिंक करूंगा क्लाइमेट रिलेटेड फैक्टर से और उनके इफेक्ट्स ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। जब हमने क्लाइमेट रिलेटेड फैक्टर्स को समझ लिया होगा, तो फिर हम चलेंगे दुनिया की नई नवेली इनोवेशंस के ऊपर, और जो कि हम बात करेंगे सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स के ऊपर। सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स एक ऐसा एरिया है जो कि मुझे लगता है आपका एग्जामिनर ज़रूर टच बेस कर सकता है। ये 5 to 10 मार्क्स ईजी मार्क्स हो सकते हैं आपके एग्जामिनेशन के अंदर, तो मेक श्योर करिएगा कि इस एरिया को भी बहुत बखूबी सुनिए। नेक्स्ट हम मैनेजमेंट कमेंट्री के ऊपर बात करेंगे। मैनेजमेंट कमेंट्री के ऊपर मैं काफ़ी मर्तबा बात कर चुका हूं, लेकिन आई डोंट वांट यू टू जस्ट लीव इट इन दिस अटेम्प्ट, थोड़ा बहुत सुन के चले जाइएगा।
पांचवा और आखिरी एरिया जो कि मैं आज के सेशन के अंदर डिस्कस करूंगा, ये मुझसे बहुत रेलेवेंट एरिया है। ये मैं समझता हूं कि ऑल्दो इसका मैं लिंक बनाऊंगा एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ, लेकिन फिर भी मुझे ये लगता है कि ये वाला एरिया आपके पास टेस्ट हो सकता है आइदर एज अ करंट इशू, और मे बी ये टेस्ट हो जाए आइदर एज अ रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड क्वेश्चन। मुझे लगा कि ये आज के लिए रेलेवेंट है, आने वाली अटेम्प्ट्स के लिए रेलेवेंट है, तो मैंने इस एरिया को इसी लेक्चर का पार्ट बना दिया ताकि करंट इशू के फॉर्मेट के अंदर आए तब भी आप लोगों की तैयारी हो, अगर एग्जामिनेशन क्वेश्चन के फॉर्मेट में आए तब भी आप लोगों की तैयारी हो। आई मेड दिस सिंसियर अटेम्प्ट टू फॉर योर एग्जाम। जस्ट लेट मी नो हाउ यू फील अबाउट इट। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. Now, without any further ado, I'm not going to take your time any further, and we are going to jump on to our first area for today, which is making materiality judgments. देखिए जी, मटीरियलिटी एक ऐसा एरिया है जो कि अकाउंटेंट के बैक ऑफ द माइंड के अंदर होना ज़रूरी है, और प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर एक अकाउंटेंट के 12 काम आता है। हम सब लोगों ने अपनी पेपर की तैयारी करते हुए बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़े। हम लोगों ने IAS 2 से लेके IFRS 2 तक, IFRS 13 तक, IFRS 16, 15, 8, 9 तक हम लोगों ने बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़े हैं। और हम लोगों ने देखा कि IASB ने जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लागू किए, वो ऑर्गेनाइजेशन की वन वे और दी अदर सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को नोट डाउन कर रहा होता है, उनके बारे में बहुत सारी अकाउंटिंग इम्प्लीकेशन और अकाउंटिंग एडवाइजेस जारी कर रहा होता है। However, you need to understand as a developing accountant कि सारी बातों के लिए आज भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के पास इतने जवाब नहीं है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहां पे IAS 1 के तहत, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के तहत अकाउंटेंट को अपनी जजमेंट यूज़ करनी होती है, ये असेस करने के लिए कि क्या ये बात रेलेवेंट है या नहीं है, क्या मुझे इस बात को सही तरीके से बताना चाहिए या नहीं समझाना चाहिए, क्या ये बात मुझे रिपोर्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इवन इफ क्या अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसी बात के ऊपर साइलेंट है। तो हम इसी टॉपिक को फोकस करते हुए IFRS की बात सुनेंगे। IASB ने रिसेंटली एक IFRS की प्रैक्टिस स्टेटमेंट लागू करी। दिस इज नोन एज प्रैक्टिस स्टेटमेंट 2. Now you need to understand that this practice statement 2 is not an obligatory thing. अभी तक ये legally enforce नहीं किया गया है किसी भी कंपनी के लिए। हाउएवर IASB बहुत ज़्यादा इनकरेज करता है कंपनीज को, और सारी बड़ी बड़ी कंपनीज इनकरेज होती भी हैं इस प्रैक्टिस स्टेटमेंट को फॉलो करने के लिए व्हेन दे आर मेकिंग देयर मटेरियलिटी जजमेंट। तो प्रैक्टिस स्टेटमेंट प्रैक्टिस बताता है कि मटेरियलिटी जजमेंट लेने के लिए क्या प्रैक्टिस आइडियल है फॉलो करने के लिए। सो बेसिकली this practice statement provides companies with guidance on how to make materiality judgments. How to make materiality judgments. In my earlier lectures, हम लोगों ने ज़्यादा फोकस किया था, मेरे पुराने करंट इश्यूज़ के आप वीडियोस जाके देखें तो उसके अंदर हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे ऑन द फैक्ट कि व्हाट इज़ मटीरियलिटी। और यकीन जानिए कि ये आपके एग्ज़ाम के अंदर एक बार एग्जामिन हो भी चुका है। तो व्हाट इज मटीरियलिटी के ऊपर तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, हम आज भी थोड़ा सा टच बेस करेंगे, लेकिन इस प्रैक्टिस स्टेटमेंट का जो असल ऑब्जेक्टिव है वो व्हाट के ऊपर नहीं है बल्कि हाउ के ऊपर है। हाउ टू मेक मटीरियलिटी जजमेंट्स, प्रोसेस क्या फॉलो करना चाहिए है। ऑल राइट, सो हाउ टू मेक मटीरियलिटी जजमेंट्स व्हेन प्रिपेयरिंग जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद IFRS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कैसे करना है। अब मेरी बात सुन के ना आपके दिमाग में आया कि सर सही है, तो फिर बताना शुरू करिए कि किसी भी अकाउंटेंट को कैसे मटीरियलिटी जजमेंट्स लेनी चाहिए। लेकिन इससे पहले कि हम उसके ऊपर बात करें, हम सबसे पहले ज़रा रिकॉल करते हैं कि आखिरकार मटीरियलिटी की डेफिनेशन थी क्या। IFRS कहता है, एंड व्हेन आई से IFRS कहता है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क IAS 1 कहता है कि मटीरियलिटी हर वो इंफॉर्मेशन है, देखें, हर वो इंफॉर्मेशन मटीरियल है। बोले तो हर वो इंफॉर्मेशन काम की है, हर वो इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है जिसको अगर ओमिट कर दिया जाए
या फिर मिसस्टेट कर दिया जाए, या फिर ऑब्सक्योर कर दिया जाए। नाउ ऑब्सक्योर एक नया लफ्ज है जो कि ऐड ऑन हुआ था मटीरियलिटी की डेफिनेशन के अंदर। आईफारिस कहता है कि ये अकाउंटेंट ज़रा तुम खुद अंदाज़ा लगाओ इस बात का कि क्या मटेरियल है और क्या मटेरियल नहीं है। अगर अंदाज़ा लगा रहे हो तो ऐसे सोच के अंदाज़ा लगाओ कि हर वो इंफॉर्मेशन मटेरियल है, हर वो इंफॉर्मेशन मटेरियल है जिसको अगर ना बताया जाए, बोले तो ओमिट कर दिया जाए, जिसको अगर गलत बताया जाए, बोले तो मिसस्टेट कर दिया जाए, या जिसको गलत तरीके से बताया जाए, बोले तो गलत तरीके से बताने का मतलब ऑब्सक्योर कर दिया जाए, तो उससे फाइनेंशियल डिसीजन मेकर्स के, यानी जो प्राइमरी यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उनके डिसीजंस एक्सपेक्ट हो जो है वो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। भाई क्या कह रहे हैं हर वो इंफॉर्मेशन मटेरियल है जिसको अगर ना बताया जाए, गलत बताया जाए, कम बताया जाए, तो उससे जो आपके यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, प्राइमरी यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उनका डिसीजन अफेक्ट हो सकता है। सर इसकी कोई मिसाल दे के बताएं कि इसकी मिसाल क्या हो सकती है। भाई मिसाल ऐसे ले लेते हैं कि आपका कोई रीसेंट मर्जर या एक्विजिशन हुआ, और उस रीसेंट मर्जर या एक्विजिशन का आप वबांग दहल आप मीडिया के ऊपर भी अनाउंसमेंट दे चुके हैं, प्रेस रिलीज भी दे चुके हैं, स्टॉक मार्केट रिलीज भी दे चुके हैं, यानी आप दुनिया को सब कुछ बता चुके हैं। आपने बहुत बार इश्तिहार इस बात के भी चलाए हैं। लेकिन आप ज़रा सोचें कि अगर यही बात जो बेशक दुनिया को प्रेस रिलीजेस के थ्रू पता है, लेकिन अगर आपने ये मर्जर एंड एक्विजिशन वाली बात अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ना बताई, तो ना बताना क्या ओमिशन, यानी ओमिशन करना क्या किसी भी प्राइमरी यूजर के फाइनेंशियल के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है? बिल्कुल हाँ। देखिए ना, प्रेस रिलीजेस, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बाकी सारी न्यूज़ तो आज लोग देख रहे हैं। अगर अगले साल जाके कोई आपकी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठा के देखेगा और उसके अंदर मर्जर या एक्विजिशन की नहीं बात हुई भी होगी, तो क्या उसके डिसीजंस अफेक्ट नहीं हो जाएंगे? भाई बिल्कुल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। सही है। इसी तरह मिसाल के तौर पे एक कंपनी लेता हूं जिस कंपनी ने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, और वो मिसाल के तौर पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि करेंसी की वैल्यू से बहुत अफेक्ट होता है। डॉलर बेस्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए। अब जैसे अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर इन रीसेंट टाइम्स करेंसी बहुत डिप्रिशिएट हुई है। जब करेंसी बहुत डिप्रिशिएट हुई तो डॉलर की वैल्यू बहुत ऊपर चली गई। आपकी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी डॉलर टर्म्स के अंदर, तो जब आपकी डॉलर की वैल्यू आपके मुल्क में बढ़ गई तो आपकी इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, हेंस आपकी बुक्स के अंदर एक मार्क टू मार्केट का फेयर वैल्यू गेन आ गया। इस फेयर वैल्यू गेन की वजह से हो सकता है आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बहुत ज्यादा हाई आ रहा हो या इवन पॉजिटिव आ रहा हो। अब किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने ये तो आपको बोला नहीं है कि आप लोग ऑपरेशनल प्रॉफिट भी बताया करें या ऑपरेशनल एबिटा भी बताया करें। ये चीज़ें रिकमेंड की जाती हैं लेकिन रिक्वायर्ड तो नहीं है ना। तो अब एक अकाउंटेंट को यहाँ पे सोचना है कि देखें अगर इस फेयर वैल्यू गेन के साथ मैंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करी, तो मैं ऑल्दो कि मैं आईएएस भी कंप्लाई कर रहा हूँ, आईएफआरएस भी कंप्लाई कर रहा हूँ, मैं कुछ छुपा भी नहीं रहा हूँ, लेकिन डोंट यू थिंक कि सिर्फ इस बात पे रिलाई करना कि फेयर वैल्यू गेन्स की वजह से कंपनी प्रॉफिट में है, क्या ऑब्सक्योरिंग इंफॉर्मेशन नहीं है? यानी आपने चीज को गलत तरीके से प्रेजेंट कर दिया, हो सकता है आपकी कंपनी ऑपरेशनल लॉस के अंदर हो, लेकिन फेयर वैल्यू गेन्स की वजह से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ रहा हो। क्या एक अकाउंटेंट की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो कम से कम एक मटेरियलिटी जजमेंट जरूर अपनाए और ये असेस करे कि क्या यार ये बात बतानी भी चाहिए या बतानी नहीं चाहिए? तो मर्जर एक्विजिशन एक एग्जाम्पल है, फेयर वैल्यू मूवमेंट्स एक एग्जाम्पल है, इम्पेयरमेंट एक एग्जाम्पल है, क्लाइमेट रिलेटेड फैक्टर्स एक एग्जाम्पल है। बहुत सारी एग्जाम्पल्स मैं आपको दे सकता हूं जिनके अंदर आईएएस और आईएफआरएस की बजाते खुद कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन एक अकाउंटेंट की जिम्मेदारी है कि वो मटीरियलिटी जजमेंट मेक करे और उस मटीरियलिटी जजमेंट को लेते हुए ये सोचे कि क्या ये बात ऑल्दो आईएएस आईएफआरएस में रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन क्या फिर भी ये बात मुझे बता देनी चाहिए है, क्या
इसको क्लियरली प्रेजेंट कर देना चाहिए, क्लियर एंड कंसाइज मैनर के अंदर प्रेजेंट कर देना चाहिए, ताकि मेरे प्राइमरी यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के काम आ सके। तो इससे हमें पता चला कि मटीरियलिटी की इंपॉर्टेंस बहुत है। जब आप एग्जाम के अंदर जाएं और मटीरियलिटी का सवाल आए तो सबसे पहले तो डेफिनेशन ठोक दीजिएगा, लिखिएगा इंफॉर्मेशन इज कंसिडर्ड टू बी मटीरियल इफ omitting, misstating or obscuring that information could reasonably influence the decisions of the primary users of the financial statements। इतनी बात लिख देना आपके लिए काफ़ी है, लेकिन लिखिएगा ज़रूर। अब सर आपकी बात से हमें ये कुछ कुछ एहसास ज़रूर हुआ कि मटीरियलिटी जजमेंट लेना एक अकाउंटेंट के लिए इम्पॉर्टेंट बहुत है। आजकल के डायनामिक एनवायरनमेंट के अंदर अकाउंटेंट कैन नॉट सोलली रिलाई ऑन आईएएस एंड आईएफआरएस, कुछ अपनी खोपड़ी भी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। सर खोपड़ी इस्तेमाल करने का तरीकेकार क्या होगा, व्हाट इज द पैटर्न टू डू दैट? तो इस प्रैक्टिस स्टेटमेंट के अंदर, आईएफआरएस की प्रैक्टिस स्टेटमेंट के अंदर, देयर इज बेसिकली अ 4 स्टेप अप्रोच एन अकाउंटेंट शुड फॉलो इन ऑर्डर टू मेक इट्स मटीरियलिटी जजमेंट्स। और देखें, आप वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन से अभी घबराइएगा नहीं, क्योंकि जो जो मैं आपको बता रहा हूं, जो जो मैं आपको थ्योरेटिकली बता रहा हूं, वो अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा। तो देयर इज अ 4 स्टेप अप्रोच विच इज रिकमेंडेड बाय आईएफआरएस प्रैक्टिस स्टेटमेंट नंबर 2। सबसे पहले वो ये कहते हैं कि एन अकाउंटेंट नीड्स टू आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। देखिए, आपको जाना पड़ेगा ट्रांजैक्शन लेवल के ऊपर। एक अकाउंटेंट के बैक ऑफ द माइंड के अंदर, एक अकाउंटेंट की आईएएस और आईएफआरएस की नॉलेज से उसको इस बात का अंदाज़ा ज़रूर होना चाहिए है, उसकी इतनी कैपेसिटी और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस होनी चाहिए कि वो इस बात का अंदाज़ा लगा सके कि क्या क्या ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के अंदर पोटेंशियल है कि ये मटीरियल हो सके। एन अकाउंटेंट द एंटिटी लिखा हुआ है, लेकिन जिम्मेदारी देखो अकाउंटेंट की ही है, क्योंकि अकाउंटेंट ही है जो कि कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग कर रहा होगा। उसने एसबीआर पढ़ा हुआ है, बाकी सबने नहीं पढ़ा हुआ। मार्केटिंग हेड ने, सेल्स हेड ने, सीईओ ने शायद नहीं पढ़ा हुआ। अकाउंटेंट तुम्हारी जिम्मेदारी है। सुनो, the entity identifies information that has the potential to be material। एक अकाउंटेंट की जिम्मेदारी है कि वो अपनी रियल लाइफ में, अपने एग्जामिनेशन में इन बातों के ऊपर गौर करे कि यार कौन सी इंफॉर्मेशन ऐसी हो सकती है विच हैज़ द पोटेंशियल टू बी मटीरियल। ये हो गया भाई आपकी आइडेंटिफिकेशन स्टेज। यहाँ पे आप आईएफआरएस को भी मलूज़े खातिर ज़रूर रखा करेंगे। वंस यू हैव आइडेंटिफाइड अ पर्टिकुलर सिनेरियो, और मैं अपनी एग्जाम्पल्स के अंदर इस बुक के ऊपर बात करूंगा, देन यू हैव टू असेस द सिनेरियो। एक पोटेंशियल प्रॉब्लम आपके सामने आई, देन असेस क्या ये पोटेंशियल प्रॉब्लम मटीरियल है या मटीरियल नहीं है। अब देखें, मटीरियलिटी ना 2 टाइप्स की होती है। एक होती है जी जिसको आप कहते हैं क्वांटिटेटिव मटीरियलिटी, और एक होती है जी जिसको आप कहते हैं क्वालिटेटिव मटीरियलिटी, है ना। एक होती है क्वांटिटेटिव मटीरियलिटी, एक होती है क्वालिटेटिव मटीरियलिटी। बहुत सारे अकाउंटेंट्स अपने बैकग्राउंड की वजह से क्वांटिटेटिव मटीरियलिटी के अंदर बड़े कंफर्टेबल होते हैं। वो जी अपने ऑडिट के पेपर के अंदर पढ़ा हुआ तो है कि फलाना X% ऑफ सेल्स हो जाए, X% ऑफ प्रॉफिट हो जाए, X% ऑफ नेट एसेट्स हो जाए या टोटल एसेट्स हो जाए, तो जी आपकी मटीरियलिटी या परफॉर्मेंस मटीरियलिटी हिट हो जाती है। अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स सब अपना फोकस उस तरफ कर देते हैं और फ़ौरन से फ़ौरन जाके उस चीज़ को पकड़ लेते हैं कि भाई ये मटीरियलिटी है या मटीरियलिटी नहीं है, उसमें इंडस्ट्री प्रैक्टिस का सपोर्ट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ सब कुछ अवेलेबल है। पर भाई आज के ज़माने के अकाउंटेंट को क्वालिटेटिव थ्रेशोल्ड भी मीट करना पड़ेगा, यानी क्वालिटेटिव बेंचमार्किंग भी करनी पड़ेगी किसी चीज़ के बारे में आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या वो चीज़ मटीरियल है या मटीरियल नहीं है। ये बात याद रखिएगा कि ऑल्दो क्वांटिटेटिव मटीरियलिटी को असेस करने के लिए बहुत सारे ऑडिट के और अकाउंटिंग के बेंचमार्क्स अवेलेबल हैं, बट क्वालिटेटिव मटीरियलिटी को असेस करने के लिए मैं समझता हूँ आपकी एथिक्स भी बहुत ज़्यादा काम आती है और आपका प्रोफेशनल एक्यूमेन भी बहुत ज़्यादा काम आता है। तो हेयर यू नीड प्रोफेशनल एक्यूमेन, राइट, कि क्या वो चीज़ रियलिटी के अंदर बजाते खुद क्वालिटी बाय द नेचर ऑफ दैट इवेंट, क्या वो चीज़ मटीरियल है या वो मटीरियल नहीं है। इसके अंदर आपका एक्यूमेन काम आएगा।
प्रैक्टिस स्टेटमेंट कहती है या आपको दोहराती है कि देखिए, याद रखिएगा, जितना ज्यादा कोई चीज क्वालिटेटिवली मटेरियल होगी ना, द मोर qualitatively significant the event is, qualitatively significant the event is, the less is the quantitative threshold. क्या कह रहे हैं भाई? भाई आपको अपनी प्रायोरिटी बता रहे हैं, कह रहे हैं मोर द क्वालिटेटिव थ्रेशोल्ड या द मोर सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव मटेरियलिटी इज, the more the event is qualitatively significant, the less it needs to be quantitatively material. अगर कोई इवेंट ऐसा इवेंट है, जैसे मैंने मर्जर्स एंड एक्विजिशन की मिसाल दी, तो अगर कोई इवेंट क्वालिटेटिवली बहुत मटीरियल है, तो क्वांटिटेटिवली मटीरियल उसका होना जरूरी नहीं होता. द मोर क्वालिटेटिव मटीरियलिटी इज हाई, the less quantitative threshold is required to be. तो जब आप एग्जामिनेशन अटेम्प्ट के अंदर जाएंगे तो आप आइडेंटिफाई करेंगे सिनेरियो, बोलेंगे अकाउंटेंट को आइडेंटिफाई करना चाहिए, फिर आप वहां पे ये बताएंगे कि असेसमेंट करते हुए क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों मटेरियलिटीज को कंसिडर करना है. हाउएवर, मोर सिग्निफिकेंट द क्वालिटेटिव फैक्टर्स, द लोअर दोस क्वांटिटेटिव थ्रेशहोल्ड्स विल बी. इस बात को आपने जरूर मेंशन करना है. एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया, असेस कर लिया, आपको लगता है कि नहीं यार ये क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव या दोनों थ्रेशोल्ड्स को मीट करता है, मुझे इस बात को कहीं ना कहीं रिपोर्ट जरूर करना चाहिए. तो भाई तीसरा स्टेप अकाउंटेंट क्या करे? वो इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करे, वो इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करे. You need to place that particular information rightfully in the financial statements. क्या वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट हो, क्या वो परफॉर्मेंस के अंदर रिफ्लेक्ट हो, क्या कैश फ्लोज या डिस्क्लोजर्स के अंदर जाके जो है रिफ्लेक्ट हो, उस इंफॉर्मेशन को आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पैरामीटर के अंदर करेक्टली जाके प्लेस करना है. इट शुड बी वेरी क्लियर कि जब आप अपनी ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर वो इंफॉर्मेशन को जाके प्लेस करें, तो it should be presented in a clear and concise manner. It should be clear and concise. Obscuring नहीं होनी चाहिए, ना omission हो, ना misstatement हो, ना obscuring हो. This is fairly important. और पता है लास्ट स्टेप क्या है? Once you have identified, assessed, organized, just review. फोर्थ स्टेप जानबूझ के डाला गया, कहते हैं रिव्यू भी करो. अच्छा, रिव्यू से मुराद क्या है? अक्सर आईएफआरएस की अगर आप सोच को देखें तो वो कह रहे हैं दोज हु आर चार्ज विद गवर्नेंस. एक अकाउंटेंट ने खुद ही रिव्यू नहीं कर लेना. दोज हु आर चार्ज विद गवर्नेंस यानी ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होगी उसमें मिनट भी होना चाहिए, उसके अंदर इस बात को एम्फेसिस भी दिलानी चाहिए. इस बात को आपने एक होलसम लेवल के ऊपर जाके देखना है. कहते हैं रिव्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रॉम अ वाइड पर्सपेक्टिव एंड इन एग्रीगेट. आपको उस मटेरियलिटी के एक इवेंट का इम्पैक्ट यानी एक ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट आपने जाके असेस करना है एफएस लेवल के ऊपर भी. ये देखें कि वो इंफॉर्मेशन कितनी परवेजिव है, कितनी परवेजिव है. यानी उस इंफॉर्मेशन को जब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाके प्लेस किया तो उस इंफॉर्मेशन की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल के ऊपर कितना बड़ा इफेक्ट आया, क्या कोई और इफेक्ट आया है जो कि मुझे मलूज़े खातिर कर लेना चाहिए है. तो आपको परवेजिवनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन जाके असेस करनी है ऑन द होल कंपनी लेवल, ऑन द होल कंपनी लेवल. इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूं कि अगर आज हम ये वीडियो बना रहे हैं और उस वक्त की बात करें तो पाकिस्तान एक डिफ़िकल्ट इकोनॉमिक टर्मोइल से गुजर रहा है. और इस इकोनॉमिक टर्मोइल को एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है मैनेज करने के लिए कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमिक मेजर्स लिए गए, जिसके अंदर वन ऑफ द मेजर्स वाज कि यार इंपोर्ट बैन लगा दिया जाएगा. एंड वर्चुअली कोई भी ऐसा आइटम जो कि एक्सपेंशन को सपोर्ट करता है वो पाकिस्तान में फ़िलहाल अभी इंपोर्ट बैन का शिकार है, वो चीज़ इंपोर्ट नहीं की जा सकती. नाउ फॉर एग्जाम्पल, एक एंटिटी है, उसके पास एक प्लांट है जिसको उसने इस पीरियड के अंदर इम्पेयर कर दिया.
तो एक अकाउंटेंट ने ये सिचुएशन आइडेंटिफाई की, असेस की, ऑर्गेनाइज की, और उसने सही तरीके से जाके उस इम्पेयरमेंट, उसकी रीजन, उसकी अजम्पशन, सबको डॉक्यूमेंट कर दिया भाई। बहुत ही बेहतरीन अकाउंटेंट था, सब कुछ कर दिया उसने। लेकिन ए अकाउंटेंट, हम तुमको एक और बात कह रहे हैं, जब तुमने इस प्लांट को इम्पेयर कर दिया और सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर लिया, क्योंकि तुम्हें लगता था ये मटेरियल है, ये बताना ज़रूरी है, तुमने डिस्क्लोजर भी दे डाला उस बात का, तो उस इंफॉर्मेशन को फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल, फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, ज़रा एक बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्लेस करके उसकी परवेजिवनेस चेक करो। अरे भाई, तुम्हारा एक प्लांट डिस्ट्रॉय, डैमेज या इम्पेयर हो गया, तो भाई दूसरा प्लांट लाने की पॉसिबिलिटी है या नहीं है? भाई इंपोर्ट बैन लगा हुआ है, दूसरा प्लांट आ ही नहीं सकता। तो क्या कोई गोइंग कंसर्न इफेक्ट तो क्रिएट नहीं हो रहा? हाँ। अच्छा, एंटिटी ने बोला नहीं जी, कोई गोइंग कंसर्न इफेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे पास एक बैकअप प्लांट मौजूद है, हो सकता है हमारे पास डिमांड ही इतनी है कि हम एक प्लांट पे गुजारा कर लें। लेकिन फिर एक अकाउंटेंट को ये सोचना चाहिए है कि शुड आई ऐड एडिशनल इंफॉर्मेशन विद रिगार्ड्स टू दिस सिनेरियो? हाँ। जब आपने उसकी परवेजिवनेस चेक की, जब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन जाके रखी, तो एक बार पब्लिश करने से पहले इसको सोचें कि क्या इस बात को पढ़ के, क्या इस हेड को डाल के, क्या इस डिस्क्लोजर को समझ के इन्वेस्टर के दिमाग में आपकी पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल से रिलेटेड कोई और सवाल पैदा हो सकता है? अगर हो सकता है तो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे डालो, ताकि कम्युनिकेट कर दो शेयर होल्डर्स को, प्राइमरी यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, कि भाई बहुत बड़ा इंपैक्ट आ गया है या कोई भी इंपैक्ट नहीं आया है, इस बात से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल के ऊपर कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं आया। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल के ऊपर क्या हुआ, ये बात बताना ज़रूरी है, इसीलिए रिव्यू का स्टेज एडअप किया गया है। ऑलराइट। सो अपने एग्जामिनेशन के अंदर जाएं तो मटीरियलिटी की डेफिनेशन ज़रूर लर्न करें। ये 4 स्टेप अप्रोच लर्न करें। आइडेंटिफाई, असेस, रिव्यू, सॉरी, ऑर्गेनाइज, रिव्यू। आइडेंटिफाई, असेस, ऑर्गेनाइज, रिव्यू। आइडेंटिफाई, असेस, ऑर्गेनाइज, रिव्यू। ये जो सारा इसका कंटेंट है ना, इसको रट के जाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट कॉमन सेंस से सोचें, अपने आप को पढ़ाने की कोशिश करें कि आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता होगा, फिर असेसमेंट का मतलब क्या होता होगा, उसमें क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव वाली बात है, फिर उसके अंदर ऑर्गेनाइज वाली बात है, फिर उसके ऊपर रिव्यू वाली बात है। ये सब आप खुद भी लिख पाएंगे, रट्टा मार के जाने की ज़रूरत नहीं है बाबा। लेकिन लेकिन जो ये 4 स्टेप्स हैं, इनको आप याद करके ज़रूर जा सकते हैं। हम्म। ताकि अगर मटीरियलिटी लग जाए तो भाई ठक करके अपने पास जवाब आता हो। ओके की रिपोर्ट है मेरी जान? सब सेट है? बात समझ में आ रही है? हम्म। सर जी, सब बातें समझ में आ रही हैं, लेकिन डर अपने को ये लग रहा है कि अगर यही चीज़ मेरे एग्जामिनेशन के अंदर आ गई तो कैसे आ सकती है, और सर उसका जवाब कैसे देना होगा, सर रियल लाइफ में इस बात की इम्प्लीकेशन क्या है। तो मेरे दोस्तों, ज़रा एक मिसालों से समझने की कोशिश करते हैं कि अभी जो हमने पढ़ा वो कॉन्टेक्चुअली कैसे आ सकता है आपके सामने। लेट्स मूव ऑन टू सर्टेन एग्जाम्पल्स। याद रखिएगा, दिस प्रैक्टिस स्टेटमेंट इज अ नॉन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट। याद रखिएगा, इट इज अ नॉन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट। ऑल राइट। तो जी, करना अब अपने को ये है कि we need to go through certain examples which help us in understanding के how this practice statement actually works. तो आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल, और इस एग्जाम्पल के ऊपर आप सुनते भी रहिएगा मेरी बात को, सोचते भी रहिएगा मेरी बात से, एंड देन विल ट्राई टू फॉर्मुलेट एन आंसर। कहते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 में, एन एंटिटी हैज इट्स मेन ऑपरेशंस इन अ कंट्री that, as part of an international agreement, is committed to introduce regulations to reduce the use of carbon based energy। भाई सुनिएगा, आप एक एंटिटी हैं और एक ऐसे मुल्क के अंदर मौजूद हैं जो कि एक ऐसे इंटरनेशनल अग्रीमेंट का पार्ट है। मिसाल के तौर पे एक अग्रीमेंट हुआ था पिछले सालों के अंदर जिसका नाम था पेरिस अग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज। अभी बड़ी रिसेंटली कोविड के बाद एक एक डेवॉस के अंदर मीटिंग हुई थी। हाँ। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दीज सेमिनार्स, एज अ रिजल्ट ऑफ दीज
मीटिंग्स पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी अग्री टू सम स्टेप्स जो कि ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग को और क्लाइमेट इफेक्ट्स को कंट्रोल करेगी। तो आप एक ऐसी एंटिटी हैं जो कि एक ऐसी कंट्री के अंदर है, जो कि एक ऐसे इंटरनेशनल एग्रीमेंट का पार्ट है जिसके तहत मुल्क को ऐसी रेगुलेशंस लेकर आनी है अगले चंद सालों के अंदर, जिसकी वजह से जो कार्बन एमिशन है वो कम से कम से कम से कम होती चली जाए। तो आप मिसाल के तौर पे आप एक एयरलाइन इंडस्ट्री हो सकते हैं, आप एक एनर्जी सेक्टर के अंदर हो सकते हैं, आप फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल के अंदर हो सकते हैं, आप कुछ भी हो सकते हैं, आपके लिए ये इंफॉर्मेशन रेलेवेंट हो गई। कहते हैं द रेगुलेशंस, याद है ना कंट्री ने रेगुलेशंस लेकर आनी थी इन लाइन विद डिवोर्स एग्रीमेंट। तो कहते हैं भाई द रेगुलेशंस हैड नॉट येट बीन इनैक्टेड, कोई रेगुलेशन अभी तक इनैक्ट नहीं हुई है। तो देर इज नो लीगल ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनीथिंग। कोई IS-37 अभी तक अप्लाई नहीं हुआ, कोई लीगल ऑब्लिगेशन आपके ऊपर कुछ भी नहीं है। तो कहते हैं द रेगुलेशंस हैड नॉट बीन इनैक्टेड इन द नेशनल लेजिस्लेशन ऑफ दैट कंट्री एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। अभी तक कोई लॉ नहीं आया है इन विद रिगार्ड्स टू दिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट। द एंटिटी ओन्स अ कोल फायर्ड पावर स्टेशन इन दैट कंट्री। ओए होए 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 होए, जिस कंट्री के अंदर आप मौजूद हैं उस कंट्री के अंदर आपका एक कोल पावर प्लांट ऑपरेट करता है। और जी भाई कोल पावर प्लांट ऑपरेट करता है आपका, और ऐसी लेजिस्लेशंस आई नहीं हैं लेकिन आने वाली हैं एज पार्ट ऑफ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट, जिसकी वजह से मुझे कार्बन एमिशंस को लोअर डाउन करना है। अब ज़रा अपने दिमाग के अंदर सोचिए, आप कंपनी के CEO हैं, CFO हैं, आप कंपनी के अकाउंटेंट हैं, आपने टीवी पे चलते हुए देखा कि एज पार्ट ऑफ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रेगुलेशंस विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन द फ्यूचर, जिसकी वजह से कार्बन एमिशन वाली इंडस्ट्रीज इफेक्ट में आएंगी। फौरन से आपके दिमाग में आना चाहिए था एज एन अकाउंटेंट के दादा इम्पेयरमेंट की हिंट है। भाई याद है ना, impairment is said to arise when your carrying value exceeds your recoverable amount, and recoverable amount is higher of two things: fair value less cost to sell, और आपका वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज होता है डिस्काउंटेड कैश फ्लोज की बेसिस के ऊपर। अब अगर आगे चल के कोई एडवर्स लेजिस्लेशन आएगी तो उसकी वजह से जो आपकी ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी होगी, भाई अगर आपसे नेशनल गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी बाय करती है आपके पावर प्लांट से, तो क्योंकि वो ऐसी रेगुलेशंस लेकर आई है जिसमें कार्बन एमिशंस को उसने डिस्करेज करना है, तो आपके पावर प्लांट से वो बिजली नहीं खरीदेगी। जब बिजली नहीं खरीदेगी तो आपके जो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हैं फ्यूचर के, वो ख़राब हो जाएंगे। जब आपके ऑपरेटिंग कैश फ्लोज फ्यूचर के ख़राब हो जाएंगे और वो डिस्काउंट होके और ख़राब हो जाएंगे, तो इसका मतलब देर इज़ अ रिस्क कि दैट योर कैरिंग वैल्यू विल एक्सीड योर रिकवरेबल अमाउंट, आपकी वैल्यू इन यूज़ कम निकल कर आ रही होगी। अकाउंटेंट ने बोला जी इम्पेयरमेंट की हिंट हो गई है। अच्छा, इम्पेयरमेंट की हिंट हो गई है तो उसने इम्पेयरमेंट टेस्टिंग की होगी, और मैं तो कहता हूँ भाई इस सिनेरियो में इम्पेयरमेंट टेस्टिंग के नतीजे में इम्पेयरमेंट आई होगी, क्लियर कट इम्पेयरमेंट आई होगी। तो कहते हैं जी ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड द एंटिटी रिकॉर्डेड एन इम्पेयरमेंट लॉस ऑन इट्स कोल फायर्ड पावर स्टेशन। भाई अकाउंटेंट बड़ा चीता आदमी था, उसने IS-36 पढ़ा हुआ था, किसी अच्छे टीचर से पढ़ा हुआ था, उसने फ़ौरन के फ़ौरन बोला सर जी इम्पेयरमेंट की हिंट है, इम्पेयरमेंट की हिंट है तो फ़ौरन से इम्पेयरमेंट टेस्ट करके इम्पेयरमेंट रिकग्नाइज कर लेनी चाहिए। भाई यकीन जानिए कर ली इन्होंने इम्पेयरमेंट, कर ली इन्होंने इम्पेयरमेंट टेस्टिंग, इम्पेयरमेंट बुक सब कुछ कर लिया जी। which by reducing the carrying amount of the power station to its recoverable amount, सब कर लिया भाई, सब कर लिया, बेहतरीन हो गया जी, बेहतरीन। सर इन सारे सिनेरियो के अंदर सर जी मटीरियलिटी का मसला क्या है? सर सब कुछ तो कर लिया कंपनी ने, तो मटीरियलिटी कहाँ से बीच में आ गई? तो भाई सुनो ना, देखिए आप IS-36 को कॉन्टेक्चुअलाइज करें। IS-36 which is impairment of assets does not require an entity to disclose the assumptions used to determine the recoverable amount of a tangible asset। भाई अगर आप IS-36 की माने ना, तो आपके ऊपर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, डज नॉट रिक्वायर एन एंटिटी टू डिस्क्लोज द अजम्पशंस जिसकी बेस पे रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट की गई। यानी आपने इम्पेयरमेंट बुक कर दी, ये बहुत अच्छा काम किया, लेकिन इम्पेयरमेंट कैलकुलेट करने के लिए जो रिकवरेबल अमाउंट निकाली, और रिकवरेबल अमाउंट किन अजम्पशंस के ऊपर निकाली थी कि आपके फ्यूचर ऑपरेटिंग कैश फ्लोज बहुत ब्लीक हो जाएंगे, ये वाली बात बताना ज़रूरी नहीं है।
रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब एक अकाउंटेंट ने यहाँ पे एक आइडेंटिफाई कर लिया एक सिनारियो जिसके अंदर ये जो एडवर्स लेजिस्लेशन वाला इफेक्ट है, ना ये अभी IS-37 को ट्रिगर किया है, ना अभी ये IS-36 में कोई मामला है, उसको सोचना है कि क्या मुझे एडिशनल इंफॉर्मेशन बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए। नाउ ये क्वालिटेटिवली देखें, क्वांटिटेटिवली अभी कोई असेसमेंट नहीं हुई है, और अगर हुई है तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इम्पेयरमेंट की फॉर्म में रिफ्लेक्ट हो चुकी है। क्वालिटेटिवली सोचा जाए तो क्वालिटेटिवली ये असेसमेंट करने की ज़रूरत है, क्वालिटेटिवली ये असेसमेंट करने की ज़रूरत है कि क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की जाए या ना की जाए। तो भाई अब क्या करें, है भाई अब क्या करें। तो अब उसने आइडेंटिफाई कर लिया, असेसमेंट करें तो ये चीज़ क्वांटिटेटिवली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इम्पेयरमेंट ऑलरेडी रिकग्नाइज हो चुकी है। क्वालिटेटिवली बहुत इंपॉर्टेंट है, गोइंग कंसर्न थ्रेड भी क्रिएट हो सकता है, बहुत कुछ क्रिएट हो सकता है। तो क्या डिस्क्लोजर दें या ना दें। आई एम वेरी श्योर कि अगर आप, इफ़ यू मेक मटीरियलिटी जजमेंट, यू वुड से कि यार असेसमेंट करेंगे तो ये क्वालिटेटिवली जो है क्वालिटेटिव थ्रेशोल्ड में काफ़ी आगे है, क्वालिटेटिवली इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, डिस्क्लोजर दे देना चाहिए। और आप यकीन जाने एंटिटी ऐसा ही करेगी भाई, एंटिटी ऐसा ही करेगी। अब ज़रा आंसर पढ़ें, इसका आंसर क्या है। कहते हैं the entity has concluded that the assumptions about the likelihood of the national enactment of regulations to reduce the use of carbon based energy as well as about the enactment plan it considered in measuring the recoverable amount of its coal fired power station could reasonably be expected to influence the decision of primary users the decision primary users make on the entity's financial statements। आप देखें आंसर की खूबसूरती, देखें कितनी आंसर की खूबसूरती है कि भाई आंसर कह रहा है कि भाई ये जो भी सिनेरियो है, ये जो भी अजम्पशंस हमने ली हैं, ये अजम्पशंस अगर ना बताई, गलत बताई या गलत तरीके से बताई तो जो प्राइमरी यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनके डिसीजंस अफेक्ट हो सकते हैं। तो क्या करना चाहिए जी, जी हमको बता देना चाहिए। Hence, information about these assumptions is necessary for primary users to understand the impact of the impairment on the entity's financial position, financial performance and cash flows। Disclosure दे देना चाहिए है। तो आपने देखा कि कभी कभार जिंदगी में इवेंट ऐसा होता है जो कि कंप्लाइंट विद IAS या IFRS होता है और कोई नीड भी नहीं होती IAS IFRS की उस सिनेरियो के अंदर, लेकिन फिर भी मेरे दोस्तों अगर मटीरियलिटी जजमेंट लिया जाए तो उस इंफॉर्मेशन को सही तरीके से प्रेजेंट करना बड़ा रेलेवेंट हो सकता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करते हैं, जरा सुनिएगा। और ये कुछ मैंने अभी टच बेस की भी थी अभी थोड़ी देर पहले, वापस लेके चल रहा हूं। तो जी कहते हैं an entity undertook a business combination in the reporting period। एक एंटिटी है, उसने अभी बड़ी रिसेंटली एक बिजनेस कॉम्बिनेशन किया है, यानी फॉर एग्जांपल किसी और कंपनी को एक्वायर कर लिया है। कहते हैं द एक्विजिशन डबल द साइज ऑफ द एंटिटीज ऑपरेशन। होए 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 होए, अरे भाई एक ऐसा इवेंट आया है जिसके नतीजे के अंदर आपने अपनी मार्केट स्पेस को, मार्केट साइज को, मार्केट शेयर को, मार्केट रीच को आपने डबल कर लिया। यानी इट्स अ मैसिव चेंज, क्वालिटेटिवली इट्स अ मैसिव चेंज। तो कहते हैं द एक्विजिशन डबल्ड द साइज ऑफ द एंटिटीज ऑपरेशन इन वन ऑफ इट्स मेन मार्केट्स। हाँ, ऑन द एक्विजिशन डेट the entity issued a press release providing an extensive application of the primary reasons for the business combination। अरे भाई एंटिटी कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है, एंटिटी ने बड़ा डिटेल्ड लेवल के अंदर एक प्रेस रिलीज दिया है, प्रेस ब्रीफिंग दी है, टीवी पे चले गए, मीडिया के अंदर चले गए और एक एक को बेसिकली बता दिया है कि वाई वी हैव मेड दिस बिजनेस कॉम्बिनेशन, बिजनेस एक्विजिशन, और इसकी एक्सटेंसिव एप्लीकेशन कैसे होगी, सब कुछ बारहा बता दिया गया है। अब देखें बिजनेस कॉम्बिनेशन IFRS 3 के तहत अगर आपने कोई बिजनेस कॉम्बिनेशन किया है तो आपको क्या करना जरूरी है। आपको भाई गुडविल निकालना ज़रूरी है, आपको कंसोलिडेटेड अकाउंट सिर्फ एप्लीकेबल आपने प्रिपेयर करना ज़रूरी है। आप अज्यूम कर लीजिए कि इस एंटिटी ने ये सारे काम कर लिए भाई, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बना दिए,
अगर कंपनी ने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बना दिए, प्रेस रिलीज भी दे दी, तो क्या आप ये नहीं समझते कि एंटिटी की जिम्मेदारी वहां पे खत्म हो गई? प्रेस रिलीज में हमने इस बिजनेस कॉम्बिनेशन की इंपॉर्टेंस क्या है वो बता दी थी, और हम लोगों ने अल्टीमेटली कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना ही लिए हैं, तो बात तो खत्म हो गई। अब और क्या करें? नहीं भाई नहीं, एक अकाउंटेंट को अपनी मटीरियलिटी जजमेंट लेनी है, और उस मटीरियलिटी जजमेंट के नतीजे में उसने ये सोचना है कि क्या मुझे कोई और बात बतानी ज़रूरी है। ये जो एंटिटी का साइज डबल हो जाना है, ये जो हमारी मार्केट रीच बढ़ जाना है, हमारी फ्यूचर ऑपरेटिंग कैश फ्लोज के ऊपर इफेक्ट आ जाना है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर इफेक्ट आ जाना है, क्या इसका कोई फार रीचिंग इफेक्ट होगा या नहीं होगा? आपको मेरी बात सुन के लग रहा होगा कि सर डेफिनेटली होगा, तो क्या कुछ और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बता नहीं देना चाहिए? कहते हैं द एंटिटी कंक्लूड्स कैसे? 4 स्टेप फॉलो करने के बाद द एंटिटी कंक्लूड्स that information about the business combination is material because the acquisition is expected to have a significant impact on the entity's operations due to the overall size of the transaction compared with the size of the entity. ये transaction qualitatively material है, क्वालिटेटिवली भी मटीरियल है, और क्योंकि आपका साइज डबल हो जाएगा तो क्वांटिटेटिवली भी मटीरियल है। इन दीज सर्कमस्टांसेस, माफ कीजिएगा, इन दीज सर्कमस्टांसेस, even though information relating to the primary reasons for the business combination and the description of how it obtained control is already included in a public statement, कह रहे हैं ऑल्दो कि ये बात सच है कि ये सारी की सारी बात ऑलरेडी हम एक पब्लिक स्टेटमेंट के अंदर बता चुके हैं, अवामुन्नास को पता है भाई, फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक सब पे डाल दी थी भाई कंपनी ने ये बात। हाउएवर द एंटिटी नीड्स टू प्रोवाइड दिस इंफॉर्मेशन इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इंफॉर्मेशन ज़रूर जानी चाहिए है, ऑल्दो नॉट रिक्वायर्ड बाय आईएएस, नॉट रिक्वायर्ड बाय आईएफआरएस, प्रेस रिलीज भी दे चुके हैं, लेकिन क्योंकि इंफॉर्मेशन मटीरियल है, एंड इफ यू मेक अ मटीरियलिटी जजमेंट बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव थ्रेशोल्ड्स, इस बात को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर भी बताना वारे में है, इस साल भी बारे में है, और अगर कोई अगले सालों के अंदर जाके आपकी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखता है तो उसमें अगर ये इंफॉर्मेशन ना हुई तो हो सकता है आपके प्राइमरी यूजर्स के डिसीजंस इन्फ्लुएंस हो जाएं, देयरफॉर बताना 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 जरूरी है। क्लियर हो गई जी बातें? तो ज़रा मुझे ज़रूर बताइएगा, और भाई ये जो लोग यूट्यूब के ऊपर देखेंगे कमेंट्स वगैरह के अंदर भी लिख के बताइएगा कि क्या इन एग्जाम्पल्स ने आपको ओवरऑल मटीरियलिटी जजमेंट का प्रोसेस और मटीरियलिटी की प्रैक्टिस स्टेटमेंट को समझने में मदद की या नहीं की। ज़रूर बताइएगा मुझे, हाँ ज़रूर बताइएगा, और मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करके भी बात कीजिएगा इस बारे में। ठीक होती है बात? तो मटीरियलिटी, आई स्टिल बिलीव application of materiality has not been really tested in your SBR exam मेरे दोस्तों, and I certainly believe that this is one area that can be, you know, it for this March June attempt, मेरे को लग रहा है ये, it's my presumption without any logic, I am giving an assumption that it will be tested in one of the upcoming attempts. It is my call only. ठीक हो गया जी? Now let's move forward. अच्छा देखें, मटीरियलिटी बात समझे या नहीं समझे? तो यकीन जानिए कि मटीरियलिटी से रिलेटेड ही एक टॉपिक है, और वो टॉपिक है क्लाइमेट रिलेटेड इफेक्ट्स ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखें, मैं अक्सर मिसाल देके समझाता हूँ। व्हेन वी वर यंग, व्हेन आई वाज यंगर, मैं तो अभी भी यंग हूँ, फ्रॉम मोस्ट ऑफ यू आई एम स्टिल, यू नो, मैं आपके बिल्कुल छोटे भाई की तरह हूँ। तो आप सोचिए कि व्हेन वी वर यंगर वी यूज्ड टू स्टडी कि यू नो ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ थिंग, एंड यू नो ओजोन लेयर हट रही है, और आगे चल के बड़ा इम्पैक्ट आ जाया करेगा, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट यू नो, आज की अगर आप बात करें ना, नाउ अडेज, तो क्लाइमेट चेंज इज बेसिकली एट आवर डोर स्टेप। इट इज नॉट अ फिक्शन एनी मोर, इट इज नॉट अ फिक्शन एनी मोर, इट इज अ रियलिटी, इट इज ऑन आवर डोर स्टेप्स। You have seen, you know, Pakistan was severely affected by flooding. Almost 33% of the land area of Pakistan had been affected due to the recent floodings. Huh?
approximately $16 billion worth of loss has been done to the economy as per the recent estimates by various multilateral organizations. $16 billion loss within the span of few months. 33 million people have been displaced. Their the quality of their livelihood has deteriorated. Many more have been affected in Turkey. Many of the people were affected due to the due to the monsoon rains, so called monsoon rains that happened in India. you know Climate change has basically affected many other countries. It is at our doorstep. But you know what is the unfortunate part? As accountants, we often fail to realize the effects of climate change on our financial statements. The traditional reporting standards that we have talk about many things. They talk about credit risk, they talk about discount rates, they talk about expected credit losses, they talk about bankruptcy, they talk about this, they talk about that. But in reality, there is no particular accounting standard or variety of accounting standards that specifically address the issues that arise due to climate change. It is an unaddressed area, my friends. Unaddressed area. Now you must be just thinking that, sir, what type of industries are actually affected by climate change? Are there any? Is this really a topic to be discussed on an IFRS level, or any strategic business reporting paper level? Is it so? Yes. You know which industries are highly affected by climate change? These are the industries which are most close to us. The FMCG industry, for example, the agricultural industry. If you are in fast moving consumer goods, for example, one company sells ketchup, mayonnaise, fruit juices, and this and that. Your agricultural industry is heavily affected due to climate change. Now, how will a company sell tomato ketchup if there are no tomatoes, or if that tomatoes have been destroyed by the recent floodings or the earthquakes or any other natural catastrophe? Just try to understand. Many of the FMCGs can be affected by this. The forestry industry, the companies like IKEA, Habit, and other companies, they are affected. The fishing industry, the seafood industry, the fishing industry is a very big industry, globally. It is affected by climate change. The energy industry is highly affected by climate change. Yes. Coal fire power plants example that we just saw, it is affected by climate change. We just saw this example. The logistics industry, climate change has brought many differences for the logistics industry as well. Climate change, changing weathers, freezing, different freezing points, different warming points have, you know it delays the logistic process, by much, by much. The whole supply chain disruption is created through this climate change effects. The aviation industry is affected, the tourism industry is affected. So literally don't think that climate change has no impact on the industries. Don't think that it has no relation whatsoever, from the IS or IFRS financial reporting areas. That is absolutely false. Rather, I would like to draw your attention towards this fact दैट कि कितने सारे ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं जिनका डायरेक्टली लिंक बनता है क्लाइमेट चेंज से. मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूं. मिसाल के तौर पे आप कंसिडर कीजिए IS1. नाउ IS1 requires entities to make such disclosures that help investors understand management's judgment about the future. IS1 की रिक्वायरमेंट है कि आप ऐसे डिस्क्लोजर्स दें जिससे जो मैनेजमेंट जजमेंट है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की असेसमेंट है कि बिजनेस को कैसे आगे लेके जाया जाएगा, वो डिस्क्लोज करनी है आपने. एज अ मैटर ऑफ IS डिस्क्लोज करनी है. तो क्या क्लाइमेट चेंज ये कोई इम्पैक्ट नहीं है? अगर आप IS1 के तहत कोई डिस्क्लोजर पढ़ रहे हैं और आप ये देखते हैं कि आपके जो डायरेक्टर्स हैं, जो आपके बोर्ड हैं, जो आपके दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस हैं, दे आर एक्चुअली नॉट टॉकिंग अबाउट
climate change effects, the risk and opportunities that come with it, then your investors must be in a shock right now. Because as board of governors, if you're not taking into account climate change, then you're actually preparing an impairment charge for your investors in future. So, believe you me, IS1 has clear relation with climate change. IS2, your inventories, the NRV of the inventory can be highly affected by climate change. So, climate change is certainly related with IS2 as well. What happened in Turkey through earthquakes, many of the inventory may have turned obsolete, may have deteriorated in quality. NRV टेस्टिंग के लिए आपको क्लाइमेट चेंज को पढ़ना जरूरी है, उसके लिए डिस्क्लोजर्स देना जरूरी है. IS12 के अंदर एक बात है, जब आप डेफर टैक्स एसेट रिकग्नाइज करते हैं तो डेफर टैक्स एसेट के रिकग्निशन क्राइटेरिया में आता है दैट द कंपनी हैज़ फ्यूचर फोर्सिएबल टैक्सेबल प्रॉफिट्स, जिसके अगेंस्ट आप ऑफसेट कर पाएंगे इस सिनारियो को. आप डेफर टैक्स एसेट कैसे बुक कर सकते हैं अगर आपने क्लाइमेट चेंज को अकाउंट फॉर नहीं किया? अगर क्लाइमेट चेंज के फ्यूचर फोर्सिएबल क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स की वजह से आपके फ्यूचर ऑपरेटिंग कैश फ्लोज इफेक्ट हो जाएंगे, तो आप टैक्सेबल प्रॉफिट में नहीं आएंगे. आप टैक्सेबल प्रॉफिट में नहीं आएंगे तो आप डेफर टैक्स एसेट नहीं रिकग्नाइज कर सकते. आजकल मैंने खुद देखा है कि बहुत सारी कंपनीज है जो क्लाइमेट चेंज इफेक्ट है ना, इसको IS 37 36 तक ही रखती हैं. बहुत सारे टीचर्स भी ये बोलते हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज है तो अगर कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन आ रही है तो भाई IS 37 हो जाएगा. अगर फॉर एग्जांपल कोई लीगल ऑब्लिगेशन आ रही है IS 37 हो जाएगा. बहुत से बहुत हमने पिछली मिसाल के अंदर देखा IS 36 इम्पेयरमेंट हो जाएगा. हाँ, तो हम बहुत सारी ऐसे स्टैंडर्ड से तो लिंक कर देते हैं, लेकिन भाई ऐसा नहीं है. आपका IS 12 क्लाइमेट चेंज से डायरेक्टली रिलेट करता है. इसी तरह IS 16 और IS 38. 1638 की तो एक मिसाल ये ले लीजिए कि दोनों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर लिखा हुआ है कि एन एंटिटी शुड परफॉर्म एन एनुअल असेसमेंट ऑफ इट्स रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एंड रेजिडुअल वैल्यूज. तो क्लाइमेट चेंज आपकी रेजिडुअल वैल्यू को भी अफेक्ट कर सकता है, आपके जो है वो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ को भी अफेक्ट कर सकता है. बिल्कुल रेलिवेंट है. हो सकता है वो जो आपकी IS 16 की मिसाल लेके सोचें, आपकी डी कमिश्निंग कॉस्ट का जो एस्टिमेट है वो रिवाइज हो सकता है एज अ रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज. मिसाल के तौर पे आपकी जो डी कमिश्निंग डिस्पोजल कॉस्ट है वो आपने 5% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट वैल्यू कंसिडर की थी. क्लाइमेट चेंज की वजह से हो सकता है वो 10% हो जाए, या हो सकता है आपने 20 साल बाद जाके एज्यूम की थी ये डी कमिश्निंग कॉस्ट. एज अ रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड द रेलेवेंट रेगुलेशंस हो सकता है वो पुल बैक हो जाए, वो 10वें साल के ऊपर अब इनकर करनी पड़ जाए आपको. डोंट यू थिंक दैट? तो भाई स्टैंडर्ड्स का रेलेवेंस है क्लाइमेट चेंज के साथ. क्यों नहीं समझ रहे बात को? 36 का रेलेवेंट है बिकॉज इम्पेयरमेंट की बात आती है, अभी हमने पीछे बात भी की है. IFRS 9 का रेलेवेंस है क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से, मिसाल के तौर पे आप एक लेंडर हैं, तो अगर आप एक लेंडर हैं, आपने अब किसी कस्टमर को लोन दिया हुआ है और वो कस्टमर क्लाइमेट चेंज से इफेक्ट हो जाता है, तो आपके जो लाइफ टाइम क्रेडिट लॉसेज हैं वो बढ़ जाएंगे, आपका एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस बढ़ जाएगा. आपको फौरन से फौरन प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी. पड़ेगी नहीं पड़ेगी? आपको पता है आजकल बैंक्स क्या बोलते हैं? आजकल बैंक्स बोलते हैं कि भाई कंपनी हम तुम्हें लोन देंगे, लेकिन तुम्हें ये लाजिम है कि तुम अपनी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्लाइमेट रिलेटेड इफेक्ट्स का डिस्क्लोजर ज़रूर दोगे, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी ज़रूर बताओगे, मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज बताओगे, ताकि हम जो अपना एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस है तुम्हारी कंपनी के ऊपर वो असेस कर सकें कि दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन एज अ रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज के लिए डिस्क्लोजर्स हैं भाई, डिस्क्लोजर्स की रिक्वायरमेंट है आजकल, ताकि लेंडर क्लाइमेट चेंज को देखते हुए भी लेंड किया करे और अपना इंटरेस्ट रेट, अपना रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजी वैसे ही अपनाया करे. बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? इसी तरह IFRS 13, याद है ना IFRS 13 फेयर वैल्यू मेजरमेंट. तो फेयर वैल्यू की डेफिनेशन याद है आप लोगों को? याद करें, नहीं याद है? भाई फेयर वैल्यू इज द प्राइस दैट वुड बी रिसीव टू सेल एन एसेट और ट्रांसफर अ लाइबिलिटी इन एन ऑर्डरली ट्रांजैक्शन बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स एट द मेजरमेंट डेट. तो भाई क्लाइमेट चेंज की वजह से आपकी जो मार्केट पार्टिसिपेंट के व्यूज हैं
अबाउट पोटेंशियल क्लाइमेट रिलेटेड लेजिस्लेशंस या उसके आफ्टर इफेक्ट्स, उसकी वजह से आपकी फेयर वैल्यू ऑफ एसेट या लाइबिलिटी इफेक्ट हो सकती है। आप किसी एग्जामिनेशन के अंदर बैठे हैं, आपका एग्जामिनर बग 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 ही योर एग्जामिनर इज ट्राइंग टू मेक अ लॉट ऑफ फाइन पॉइंट्स रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज, एंड इफ़ यू स्टिल डोंट अंडरस्टैंड कि इस क्लाइमेट चेंज इफेक्ट का या लोगों की परसेप्शन का डायरेक्टली ताल्लुक बनेगा फेयर वैल्यू मेजरमेंट के साथ, तो भाई अगर आप ये नहीं पकड़ पाए तो कैसे पेपर पास करोगे मेरे भाई। तो भाई क्लाइमेट चेंज का IFRS 13 से भी गहरा ताल्लुक है, बहुत गहरा ताल्लुक है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, बात नहीं आ रही? तो भाई सर जी, समझ में आ गई बात? सर जी ओके हो गया? सर जी करें क्या? सर जी सीन क्या है? तो सर जी सीन्स कुछ ऐसे हैं, जो आप सोच रहे हैं ना वो दुनिया कर चुकी है। हम्म, तभी तो एग्जाम में आएंगी ये बातें। भाई एक बॉडी है जिसका नाम है ISSB। ISSB ये कोई सिविल सर्विस की बॉडी नहीं है, हाँ? तो ISSB का मतलब है इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स बोर्ड। आज तक हम लोग रट्टे लगा रहे थे अबाउट IASB या इफ्रिक कमिटीज़। अब एक और दुनिया में नई चीज़ आ चुकी है मेरे दोस्तों, जिसका नाम है ISSB। ISSB क्या है बेटा? ये इंटरनेशनल इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स बोर्ड है, जिसने, आपको पता है, दुनिया के अंदर मेरे दोस्तों, उसने दुनिया के अंदर 77 स्टैंडर्ड्स दे दिए हैं। 77 स्टैंडर्ड्स। क्लाइमेट रिलेटेड डिस्क्लोजर कैसा हो, क्लाइमेट रिलेटेड डिस्क्लोजर कैसा हो, उसके लिए 77 इंडस्ट्री बेस्ड अकाउंटिंग नहीं, स्टैंडर्ड्स, डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स दे दिए गए हैं। हाँ, ISSB exposure draft was initiated as in response of growing concern by investors regarding disclosures that help them assess risk and opportunities that affect an entity's financial statements, an entity's future cash flows, and the entity's strategy and business model as a result of climate change. आपको पता है दुनिया में आज तक इन्वेस्टर्स का रोना ये था, बड़े बड़े स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट फर्म्स हमेशा यही रोती थी कि यार ISB का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि क्लाइमेट चेंज डायरेक्टली लिंक होता है IFRS से, डायरेक्टली लिंक होता है IS और IFRS से, लेकिन सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर देयर इज नो रेलेवेंट डिस्क्लोजर फॉर्मेट रिकमेंडेड बाय ISB जिसके ऊपर सारी कंपनीज रिपोर्टिंग किया करें, तो इन्वेस्टर्स को यूनिफॉर्म और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिले। ऐसा कुछ था ही नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं। तो ISSB ने क्या किया? ISSB ने भाई इन सारे ग्रोइंग कंसर्न्स को देखते हुए, इंटरनेशनल कम्युनिटी का इंटरेस्ट देखते हुए, ISB ने कुछ प्रपोजल्स पुट फॉरवर्ड किए, और इन प्रपोजल्स के ऊपर हम आगे चल के बात भी अभी करने वाले हैं। लेकिन वो प्रपोजल्स थे क्या, जरा सुनिएगा। ISSB ने बोला दैट वी आर गोइंग टू सेट सर्टेन रिक्वायरमेंट्स। बोले तो भाई ISSB ने बोला दैट वी आर गोइंग टू सेट सर्टेन रिक्वायरमेंट्स फॉर कंपनीज टू फॉलो। और हम क्या करेंगे, अभी मैं आगे चल के आपको ये पढ़ाने भी वाला हूं, लेकिन ISSB ने क्या किया पता है? ISSB ने 77 इंडस्ट्रीज के लिए डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। 77 इंडस्ट्रीज के लिए डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, जिनके अंदर भाई देखे ना, केमिकल इंडस्ट्री का रिस्क अलग है, भाई देखे ना आप लोग, एविएशन इंडस्ट्री का अलग है, डिफरेंट अदर फॉर्म ऑफ लॉजिस्टिक्स का अलग है, फर्टिलाइजर्स का अलग है। हर इंडस्ट्री का अपना अपना क्लाइमेट रिलेशनशिप है, और इसकी वजह से अपने अपने अलग अलग रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज हैं, है या नहीं? तो उन्होंने 77, मेरे दोस्तों, उन्होंने 77 इंडस्ट्री रिलेटेड स्टैंडर्ड्स दिए कि आपको डिस्क्लोजर कैसा देना चाहिए है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? अब
अब सर, जो इन 77 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की आप बात कर रहे हैं सर, सवाल ये है कि ये जो 77 स्टैंडर्ड्स बनाए गए, ये क्या सोच के बनाए गए हैं? व्हाट वाज द स्ट्रैटेजी ऑफ आईएसएसबी while developing these standards? There were actually four areas of focus, and when you are in your exam और आपके सामने आपके पास लिखने के लिए आपको कंटेंट चाहिए है कि what actually is being done in the accounting world for the purpose of climate related effects, for the purpose of climate related matters and their disclosures and their reporting, you should say that there are standards being developed and which have four areas of focus. First of all, what we want is governance. Now, management should disclose the processes, the controls, and the procedures that are in place to identify climate related effects, and accordingly, what strategies are being prepared in accordance with that. So, डिस्क्लोजर जो भी बनाया जाए उसके अंदर एक हेड ये होना चाहिए कि जो मैनेजमेंट का प्रोसेस है क्लाइमेट रिलेटेड इफेक्ट्स को आइडेंटिफाई और मैनेज करने का, वो प्रोसेस डिस्क्लोज हो. And it is for chemical industry, it is for fertilizer, it is for oil and gas and exploration, it is for everyone. Moving on, strategy पे बात करें. भाई, you need to disclose climate related risk and opportunities. सुनिएगा जरा. Climate related risk and opportunities that could enhance, threaten or change company's short, medium term and long term strategy. इसके ऊपर बात करें. डिस्क्लोजर के अंदर क्या क्या हो, मैनेजमेंट अपने प्रोसेसेस के बारे में बताए. डिस्क्लोजर में क्या क्या हो, मैनेजमेंट उन रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज के ऊपर बात करे जिसके नतीजे में शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी इफेक्ट हो सकती है. फिर मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में बात करें. व्हाट इज द रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी रिगार्डिंग दोस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज. फिर उसके बाद देयर मस्ट बी मेट्रिक्स एंड टारगेट्स. अगर कोई स्टूडेंट मुझसे पूछे कि सर, ये जो 77 आईएसएसबी के स्टैंडर्ड्स हैं, इनके अंदर आपके लिए एज एन अकाउंटेंट सबसे ख़ास बात क्या है, तो मेरे लिए, क्योंकि मैंने ये स्टैंडर्ड्स पढ़े हैं, सारे नहीं, कुछ तो पढ़ ही लिए हैं, तो उसके अंदर मैंने सबसे अच्छा एरिया जो देखा वो देखा इंडस्ट्री स्पेसिफिक मेट्रिक्स एंड टारगेट्स, यानी केपीआईज बताए गए जिसकी बेसिस के ऊपर परफॉर्मेंस असेस हो सकती है. यानी अमाउंट ऑफ कार्बन एमिशन से लेके एविएशन इंडस्ट्री के अलग टारगेट्स डिफाइंड हैं, केमिकल के अलग, फर्टिलाइजर, हर हर इंडस्ट्री के लिए, यकीन करें हर इंडस्ट्री के लिए देर आर सर्टेन केपीआईज जो वो आईसीएस भी कह रहा है कि हर कंपनी जो कि इस इंडस्ट्री के अंदर है और इस स्टैंडर्ड को फॉलो करती है, वो ये मेट्रिक्स और ये टारगेट जरूर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करे. तो आपको कंपेरेबिलिटी भी नजर आएगी. आपके जो प्राइमरी यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इवन जो आपके सेकेंडरी यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उनके लिए कितना हेल्पफुल होगा एक कंपनी का क्लाइमेट कंट्रीब्यूशन असेस करना और उसके रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज को असेस करना. मेट्रिक्स, टारगेट सब गिवन हैं. अगर आपको बहुत ज़्यादा ख्वाहिश हो तो यू कैन ऑलवेज गो ऑन ISSB's वेबसाइट. उनके यहाँ वो स्टैंडर्ड्स पब्लिश्ड हैं. आप किसी भी एक इंडस्ट्री को जाके सिलेक्ट करें, उसका डाउनलोड कर लें. इट्स फ्रीली डाउनलोडेबल एट द मोमेंट. आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं. जस्ट गिव इट, हैव अ व्यू ऑफ इट कि उसके अंदर आपकी आपका गवर्नेंस इम्पैक्ट, आपका स्ट्रैटेजी इम्पैक्ट, रिस्क मैनेजमेंट इम्पैक्ट और मेट्रिक्स एंड टारगेट सब उस डिस्क्लोजर के अंदर फॉर्मेट समेत, कि फॉर्मेट कैसा होगा इस डिस्क्लोजर का, वो सब बताया गया है. तो भाई, कहने का मकसद आप लोगों से ये है कि आपको समझने की ज़रूरत ये है सबसे पहले कि एक क्लाइमेट रिलेटेड मैटर्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर इफेक्ट है. पहले वाली स्लाइड पे मैंने आपको ये याद दिलाया कि इफेक्ट है और डिफरेंट स्टैंडर्ड से लिंक करके दिखाया. और दूसरी स्लाइड के ऊपर मैं आपको ये पढ़ाने बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि amid growing concerns of investors regarding climate related effects on financial statements on the company's financial position, profit or loss and cash flows, ISSB has delivered 77 standards that talk about this sustainability point. और क्या सोचते हुए ये, या क्या चार फोकस एरियाज हैं इन स्टैंडर्ड्स के, वो एक है मैनेजमेंट, एक है स्ट्रैटेजी, एक है रिस्क मैनेजमेंट और एक है आपका मेट्रिक्स एंड टारगेट्स, द फाइनेंशियल एरिया. ये डिस्क्लोजर प्रेजेंटेशन के अंदर बताए गए हैं. अकाउंटेंट्स आर वर्किंग ऑन दिस. नाउ आई एम वेरी श्योर दैट मोस्ट ऑफ यू नो
डिडंट नो अबाउट दी स्टफ, या तो कम से कम इतना डेप्थ के अंदर नहीं था. ऑल्सो लेट मी नो इन कमेंट्स कि अगर आपको ये ऑलरेडी पता था तो कितना हद तक पता था, या कोई मेरी बात आपको एडिशनली समझ में आई या नहीं आई. लेकिन आप लोगों ने नोट किया कि ये सारी चीज़ें आपको लार्जली नहीं पता. तो लार्जली नहीं पता तो ये करंट इशू बन गई ना. दिस इज अ डेवलपिंग थिंग नाउ अ डेज, एंड फॉर कंपनीज, फॉर इन्वेस्टर्स, फॉर मैनी, फॉर मैनी ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है. एंड दैट इज वाई आई सर्टेनली बिलीव दिस इज अ करंट इशू. और ये प्योरली अकाउंटेंट रिलेटेड है. डोंट फील कि ये बड़ा ही क्वालिटेटिव है और इसका अकाउंटेंसी से कोई ताल्लुक नहीं है. ये डिस्क्लोजर्स हैं, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जाएंगे, हम ही दे रहे होंगे, तो ये डेफिनेटली आपके पेपर से जो है रिलेटेबल है. ये है कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग की. ठीक हो गया बात. अब आप जरा ना मेरी तरतीब पे गौर करें. पहले मैंने आपको समझाया कि मटीरियलिटी, फिर मैंने आपको बताया क्लाइमेट रिलेटेड इफेक्ट्स. अब देखिए, क्लाइमेट रिलेटेड इफेक्ट्स किसी आईएएस या आईएफआरएस में कवर्ड नहीं है. लेकिन अगर आप मटीरियलिटी जजमेंट लेते हैं तो क्लाइमेट रिलेटेड डिस्क्लोजर्स देना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा. है ना, हुआ या नहीं हुआ? और क्योंकि मैंने क्लाइमेट रिलेटेड मैटर्स के ऊपर बात की है, तो इन दी ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी अब मैं आपके साथ बात करूंगा एक और एरिया के ऊपर, विच आर सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स. कहाँ चल रहे हैं भाई हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स की तरफ. तो जी, मामला क्या है? वी ऑलरेडी नो अबाउट ISSB. सो ये बात हुई कैसे? अगर आप मेरी पुरानी करंट इश्यूज की वीडियो भी देखेंगे ना, तो उसमें मैंने बात की थी ECG के ऊपर, ESG के ऊपर, सॉरी, ESG फैक्टर्स के ऊपर. देयर इज अ ग्रोइंग कंसर्न एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टर्स. They want to know what how the company is managing, what the company is doing with relation to its interaction with its environment, society, and on the governance end, लॉज एंड रेगुलेशन जो आजकल आ रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, उनके ऊपर हाउ द कंपनी इज डीलिंग विद दोज थिंग्स, और उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे इफेक्ट क्या है. देयर इज अ ग्रोइंग कंसर्न ऑफ इन्वेस्टर्स अबाउट दिस. हिस्टोरिकली हमारे पास कोई ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं था, इवन आईएसबी के परव्यू के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं आती थी जिससे हमें इन रियलिटी हम कुछ रिपोर्ट कर सकें, कुछ डिस्क्लोजर दे सकें कि क्या क्लाइमेट रिलेटेड क्लाइमेट रिलेटेड इफेक्ट्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर. देयर वाज नो फोरम, देयर वाज नो फॉर्मेट, देयर वाज नो बेंचमार्क जिसको फॉलो करके एक अकाउंटेंट डिस्क्लोजर देता या मटीरियलिटी जजमेंट लेता. लेकिन अब जो स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं वो स्टैंडर्ड्स आपको एक तो वो इंडस्ट्री बेस्ड स्टैंडर्ड्स हैं जैसे अभी हमने बात की, और वो इनेबल कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को कि वो अच्छे से अच्छा प्रेजेंट और डिलीवर कर सकें हर उस मटेरियल इन्फॉर्मेशन को जो कि आपके इन्वेस्टर्स की आज नीड है, आपके इन्वेस्टर्स का आज इंटरेस्ट है. ठीक है. तो एज आई टोल्ड यू, देयर आर 77 इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स प्रेजेंटेड बाय ISSB. 77. आपके एग्जाम के अंदर वन एरिया दैट, देखिए, नो बडी, इट, डोंट इवन ड्रीम इट इन योर वाइल्डेस्ट imaginations that your examiner in SBR is going to ask you that write down those 77 sustainability standards. Those are not to be learned, they are to be done, not learned. So ये वाला एरिया तो कभी भी नहीं होगा आपके पास. However, your examiner might ask you about sustainability reporting. It might ask you what is the benefit of having sustainability standards, what is the benefit of having those. So I've given you 4 bullet points, and I recommend you to learn these. These will certainly help you. Just learn these. All right. So at the very least, I give you 4 benefits that you can just learn and write it down. Rest you can, if there can be more benefits, obviously, but that you can link it with the scenario that is given in the examination question. 4 points I'm giving you for free. Rest you have to link it with your examination question. So you see, investors across asset classes means, nowadays, large investors, venture capitalists, investment firms invest in different asset classes. There is a famous saying you all must have heard: don't put all of your eggs in one basket. So investors nowadays create a diversified portfolio, right?
You must have remembered the CAPM model and everything that you used to study in financial management. Yes, investors create diversified portfolio. So investors in different asset classes, of different industries, want comparable, consistent, and reliable data on financially material sustainability factors. At the end of the day, finance is what matters to investors. They want a return. They want to ensure that the company is performing in such a manner that in the foreseeable future, in the upcoming years, or till perpetuity, they are going to have a return on their investment, right? So they want comparable, consistent, and reliable information. And for that, the standards, the sustainability standards, help a lot. All right. So sustainability standards basically, help investors to understand the financially material impacts of climate change or other ESG factors, right? I seriously suggest you that you also watch my previous video on current issues that detailed about ESG events that happened. So go through it as well. What is the next benefit? SASB standards, the sustainability accounting standards, are industry based. Good point. They are industry based. So, as investors across different asset classes want such information which is relevant for their particular asset class, we have made standards which are industry based, as I just told you. These are cost effective. These are cost effective. Now, our conceptual framework requires us to provide material information in such a manner that it is cost effective. So, sustainability, the following sustainability standards is not expensive. Now, sustainability accounting standards does not, enforce companies to spend a lot. Previously there have been some sustainability benchmarks, but they were very expensive to implement. For example, how much chemicals in waste does it go, how much carbon emission you are doing, what is the societal impact of this. Previously there used to be certain benchmarks which had at least 20 KPIs which the company had to follow in order to give a disclosure. Now that was certainly not cost effective. Now the metrics and KPIs that these standards require are basically 2, 3, or 4. So it's cost effective to implement. Companies are willingly following these standards. That is the best part of it. It is a benefit of having these standards. The IFRS Foundation's International Sustainability Standards Board encourages companies and investors to continue to support and use the SASB standards until they are ultimately replaced by IFRS Sustainability Disclosure Standards. By the time, याद रखिएगा इस बात को भी, ISSB is a foundation of IASB, right? So it is under the purview of ISB. However, until and unless, you see, these sustainability standards are not mandatory yet. So till the time mandatory disclosures are created in each of the relevant accounting standard. You see, if you have a future outlook, in future what is going to happen, each and every accounting standard will have an additional paragraph which is going to entail what disclosure should be given with regards to this standard. Every accounting standard will have a paragraph which is going to talk about sustainability disclosure, but that is far away. So what IFRS Foundation is trying to tell us is that by the time we create legal, by law enforceable disclosure standards, by that time you follow these standards which are for 77 industries, and you can follow these best practices. So if you ask me, this is an important area, and I've tried to summarize as much as possible. You see, I didn't want to give just 2-3 words bullet points, because in that case you won't have enough content to learn.
I also wanted you to learn some things when you go into your exam. So it is easier for you. If you have something already learned in back of your mind, it is easier to replicate that in your exam. That is why I've given you sufficient content which should be, enough for your exam. Don't worry about it. All right. All right. So after sustainability standards, there is one more area which is I've put this fourth in my priority, and from a current issues point of view, this is definitely the last one. In many of my previous videos, I've routinely talked about management commentary. In this lecture, in this session, I'm not going to go in detail about management commentary, because that has already been discussed at a wholesome level in earlier videos. So just go and watch those. However, I in these notes I have still included management commentary as a current affair, because it still can be tested. So here are the notes. I'm not going to spend so much time on it, because this lecture is going to linger on and linger on and linger on. I have already recommended you that you should go and watch the earlier videos. That is certainly going to help you. For this particular session, I'll just bypass it. All right. All right. Don't think that, according to me, this is not important. It is important. I just don't want to spend, time on management commentary in this lecture. Right. So what has already been done, I don't want to repeat that. All right. All right, my friends. So, up till now, we have spent a lot of time. We have discussed very keen areas that, to me, I believe are certainly important. Um, these are very good areas. However, there is one area. It's not basically a current issue. I don't know if this can be really tested as a current issue. Really, I think that this area can be tested separately as well. So I'm just going to touch base upon this area, because I feel this area can be tested as a reporting question in your exam as well. So it's certainly relevant. Let me know if you find this relevant or not. All right. So you see, if you talk about this point, many countries are facing inflationary pressures. Post COVID, we have seen a huge rise in demand, huge rise in demand. And the supply chains are not, sufficiently equipped to cover all that demand. So there is supply chain disruption. There is huge demand because many countries want to stock many of the goods which are essential for their security, their food security, their national security. And many of the people who were just sitting on their homes in 2020 and 2021, who were scared by the COVID effects, now the economy is booming again. And when the economy booms, it creates a hyperinflationary environment. So many of the countries are facing higher inflation. Higher inflation. US has record high inflation. UK has record high inflation. Countries in the South Asian region like Pakistan, India, Bangladesh, they are facing high inflation. In Pakistan, in particular, there is very high inflation. The CPI, I checked it last week, a few days back, it was 27.6%. The SPI, the sensitive price index, was around 30%. It is expected that due to the recent changes, the 22% rupee depreciation that happened in January, the mini budget that has been given in February, the rising interest rates, and the prevailing economic scenario in Pakistan will certainly push inflation up to the point of approximately 45 to 50%. Now Sri Lanka has been witnessing high inflation level. Egypt has been facing high inflation level. Turkey is already facing high inflation levels. Argentina is facing high inflation levels. We are seeing very high inflation around the world, right? And when high inflation happens, economics tells us that countries adopt contractionary monetary policy.
contractionary monetary policy, right? So I won't go into economics in detail, but I'll just give you a a basic sense of it. When there is high inflation in in any country, in any macro environment, the idea is that we apply law of demand, right? So we have studied as per in the law of demand that if prices increase, demand decreases, right? Demand decreases, and vice versa. So if there is high inflation, prices of different commodities, prices of different goods and services would be going up in the economy, and therefore the demand would be falling, and therefore the country would naturally be virtually be going into a recession, and it will slow down the economic growth, and it will produce high unemployment levels, and it will create a political unrest, and it will create an economic unrest. So when the demand goes down, there is high unemployment, low economic growth rate, and eventually the recession prevails overall. Now, in order to put down inflation, under contractionary monetary policy, central banks increase interest rates, right? And these interest rates, the rise in interest rates actually hinder inflation, right? Because you see, inflation often comes due to demand, right? High demand, inflation comes when there is more demand than the supply. So if there is more demand than the supply, then demand increases, and in order to control demand, price increases, right? Now central banks increase their interest rates, so the prices go up further. And when the prices go up further, demand trickles down, and ultimately the demand should match the supply in order to bring about an equilibrium. In order to bring about an equilibrium. You understand what I'm trying to say? So central banks adopt the policy of matching supply and demand in order to create an equilibrium, in order to create sustainability in the economy by raising interest rates. So when there is hyperinflationary environment, interest rates go up. And when interest rates go up, this is a hint of impairment. When interest rates go up, this is a hint for impairment. You see, when you're performing impairment test and you calculate recoverable amount, which is higher of two things, value in use and fair value less cost to sell. When you're determining value in use, you take future discounted cash flows, right? You take future cash flows and you discount them. Now, in a rising interest rate scenario, you see, interest rate is not the main reason. In an hyperinflationary scenario, interest rates go up, and when interest rates go up, discount factors go up, discount rates go up, and then discount factors go up. And when discount factors worsens, the operating factor, the value in use is calculated at a lower level, and impairments are recognized. So certainly, my friends, rising inflation and rising interest rates affect, is a hint of impairment, and the entity must perform impairment testing. Impairment testing. Now, my friends, what is the implication of IS 36 here? Before I tell you the implications of IS 36 in today's scenario, and I'll repeat it, it is entirely relevant. Just count the number of countries I'm just giving you, and these are World Bank and IMF estimates. You can just go and cross check those. Argentina, Ghana, Turkey, Pakistan, Kenya, Egypt, US, UK, all of these, even Canada up to some extent, all of these countries and many more
are affected by hyperinflation levels, and due to inflation interest rates will rise, and this is going to be a hint of impairment. So this is happening now. This is certainly, I feel, this is a current affair, this is a current issue, this is relevant for you. But before we discuss about the valuation aspects of IAS 36, let us just recall what IAS 36 actually says. As per IAS 36, in low inflation conditions, when the conditions are normal, valuations are performed in nominal terms. Now, valuation, we mean value in use. Value in use is calculated in nominal terms. Nominal terms means that discount rates include the effect of inflation. And now you must have studied nominal in real terms in the paper of your financial management. I'm just referencing to that point. As per IAS 36, in times of low inflation condition, valuations are performed on nominal terms, that is, such discount rates are selected that include the effect of inflation. And in hyperinflationary economies, such as the time that we are seeing nowadays in certain countries that I mentioned, valuations are performed in real terms, that is, without the effect of inflation. This is the recommendation of IAS 36. If the impact of inflation is negligible, that is low inflation levels, go directly for nominal terms. But if you are in a hyperinflationary economy, you, since the inflation is so high, 70, 80, 90%, you cannot perform impairment testing in those circumstances. Therefore, follow, you perform impairment testing in real terms. Bear in mind, whatever methodology you opt for, either you calculate you calculate value in use in nominal terms or real terms, both are going to give same answer. And how are they going to give same answer? Because cash flows and discount rates both reflect current basis. Sir, what are you actually trying to say? You remember this fact. If there are nominal cash flows, if the cash flows include the effect of inflation, then you use nominal discount rate, right? And if the cash flows are real cash flows, then my friends, you use real discount rate. Sir, how do we calculate nominal or real discount rate? You remember the Fisher's effect that we studied in our financial management course. So we use the Fisher's effect to calculate our real or vice versa nominal discount rates. So the point I'm trying to make is that as per IAS 36, if the nominal cash flows are being used, you use nominal discount rate. If you're using real cash flows, then you use real discount rate. Now, the point I'm trying to make is, I'm only talking about those companies. Sorry, which are currently using nominal terms for determining value in use, and these are going to be majority of the companies. The caution that I'm creating at this point in time, is specifically for those entities that are calculating value in use on nominal terms. Now in an examination question, it is important for you to assess if this point is written somewhere. If the company uses real cash flows for determining value in use, all of what I'm going to say, it's not relevant, it's not a current issue, it's nothing, you should ignore it. It's not relevant to your exam. But if examiner says the company has performed impairment testing by using cash flows that are in nominal terms, then the following areas are of interest of the accountant. What should and what should not the accountant should be doing. You see, in high inflation environments where nominal terms are being used for determining value in use, the incremental cash flows of each year should not be based on CPI or PPI, the consumer price index or purchase price index. Normally what an accountant does is, if you're standing in on year zero and you need to calculate value in use and you are taking 5 years as management's most recent forecast. So you take today's cash flows, for example,
the company has an operating positive cash flow of $100. So most of the companies, when they are making their most recent forecast, what they would do is that they will just follow incremental style of budgeting. And how will they calculate incremental forecast? They'll use the inflation rate. For example, if the inflation is 20%, next year's cash flow should be 120, then 144, and so on and so forth. Now, an accountant needs to be beware that when you are preparing your your cash flow forecast for determining value in use, ideally you should not be using CPI or PPI. In normal circumstances, it can be used, but in high inflationary scenarios, do not use CPI or PPI to develop your future forecast, or to calculate value in use. This is because in high inflation environments, the companies would not be able to pass on all impacts of inflation to the customer. You see, for example, if the rupee has depreciated by 30%, if I talk, I remember that in September 22, if I compare from September, the month of September 22 last year to this date, Pakistani rupee has depreciated by 30%. So technically, the cost of production, the cost of imports, everything should rise by 30%. But in times of high inflationary scenario and recessions, company won't make this mistake to pass on all 30% inflation effect to their customers, because if they do so, customers are not going to buy them, because they won't have the financial liquidity to buy 30% more expensive products, and literally the market is going to vanish. Now, in order to stay competitive, most companies are going to bear some of the inflation effect for themselves, by themselves, and pass some of the inflation effect to the customers. So if a company is basically developing its future forecast for value in use based on CPI of 20 or 30%, that is not true. You should discount the CPI or PPI to some extent, because all the inflation effect would not be, the companies won't be able to pass it on to their consumers. This is one area that you should look at when you are in your exam. In high inflation scenarios, maintenance expense may be higher than depreciation charge. Therefore, the incremental effect should be planned. Now, if you see an examination question, or in real life, if you see a cash flow forecast for determining value in use, and you see that the accountant or the company has not taken into account the additional maintenance expense, rather they are just relying on the fact that they are booking depreciation each year, and so the amount of maintenance expense required is already accounted for. If they do not consider additional maintenance expense, it is a concerning point for you. You see, the point I'm trying to make is, many companies keep their maintenance budget I'm sorry many companies keep their maintenance budget equal to the depreciation, because depreciation is the amount of fall in the value of an asset as per the company's perception. So the falling value, the obsolescence value, should be compensated by an equal expense in maintenance expenditure in order to keep the quality up to date. So, but in hyperinflationary scenarios, in inflationary scenarios such as those, those times which are prevailing nowadays, maintenance expense should be increased. So you should keep this factor in mind as well. Inflationary growth does not require capital investments. This is just a point that, I'm trying to make, that under inflation, capital investments may not be a part of future forecasts, future expenses, and that is fine, because in the times of inflation, you don't need to invest to grow. Inflation allows you to grow by itself, right? So that is one point you need to consider while making a cash flow forecast for value in use. Now, this is one area which I want you to learn again. Just try to understand the concept and then read this, and then you learn this, inshallah. As per IAS 36, IAS 36 requires entities to use a discount rate. For value in use, you need to discount your future cash flows, right?
IS 36 requires entities to use, to refer risk-free rates. Basically, WACC is used. I'll just try to explain you. For discounting, WACC is used. Now you all understand that WACC has KD, cost of debt. And for cost of debt, IS 36, advises, refers that entity should refer to risk-free rate, right? Now you all have studied that risk-free rate is the rate, basically the yield on government bonds. You all have studied financial management, obviously, right? So yield on government bonds is basically used as reference to risk-free rate for the determination of WACC, right? Now you need to be careful because in times of hyperinflationary environment, the yield on government bonds go up. In Pakistan, the yield is rising. You know why? Due to inflation and due to other economic factors, our forex reserve situation is pretty bad, and Pakistan has high default risk, we all know that. And due to that, basically the yield on government bonds go way high. And since yield on government bonds go way high, ultimately your WACC is going to rise. If your WACC is going to rise, your discounted cash flows are going to fall. And if your discounted cash flows are going to fall, your value in use is going to fall, and you have to recognize an impairment charge. Now you need to disclose this assumption or this working or this mindset in your financial statements. Why impairment happened? Because yield on government bonds went up. As a result, WACC went up. As a result, discounted cash flows came down. As a result, impairment charge recognized. You need to document significant judgments. Disclose it. Mhm. Either change your reference rate. For example, take a longer bonds yield. Take a 30, 40, 50 year bonds yield. Or maybe take, for example, if you're in Eurozone, you can take another countries or another economies yield on government bond as a reference point. You can change the reference point for the calculation of WACC and therefore value in use. But you need to disclose your significant judgments and assumptions. That is the point I'm trying to make. Oh, all right, my friends. So all of this, I certainly believe, I have good hopes that any of this area, you see, I cannot promise you, but I certainly believe that any of these areas can come into your exam, and these are very relevant. With this, I'm closing my point. But I want you to stay connected with me. Each and every person that watches this video, it is a sincere request of mine. Please subscribe to my YouTube channel. You see, all of us talk about data analytics, and I see those data, and I see that many of the people that watch my YouTube videos regularly and from different regions don't actually subscribe to my channel. If you don't subscribe, I don't get the motivation to, you know, uh, do more. So in order, the way you can encourage me is just subscribe to my channel, give me views. Mhm. And also just connect with me. I want to connect with you. All right. So see my YouTube channel, share my videos, share it on Facebook, Instagram, YouTube, and just also please comment. Please, 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 I request you all, if you like this video, just comment. If you didn't like this video, comment. If you wanted me to prepare this video in another language, comment. Do whatever you like, you comment. You can always get in touch with me on the given particular. You can get in touch with me on Facebook, on LinkedIn. Just get in touch with me. If there are any problems, you can always get in touch with me. All right. So I've done a sincere effort for you guys. I hope it is worth it. Obviously, you'll be needing notes of this current issue. So just connect with me on my given particulars. Tell me your name. Tell me your name. Your your attempt.
and just take these notes free of cost. So these are your right. Just go for it. And do not forget to share, subscribe, and view. I thank you all. I am very much hopeful that I'll stay in touch with you guys. Have a very good day. Bye bye. Thank you.